Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome to all of you in the fifth session of Green Wisdom Training Track. जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रीन विजडम ट्रेनिंग ट्रैक के अंदर हमारे पास एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ हमने स्टार्ट किया था विद द नेचर कनेक्शन एंड नाउ वी आर देन फिर हमने लैंग्वेज के बारे में भी किया था एंड देन टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी किया था एंड लास्ट टाइम हमने इको स्टेम के ऊपर भी किया था एंड नाउ वी आर हियर विद इको मैथ एंड हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूक हारिस. शी इज द मैथ एक्सपर्ट एक्चुअली. इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है मैथ आर्केड के नाम से जहाँ पे ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपना सारा काम कर रही होती हैं. उसके अलावा शी इज अ ट्रेनर एज वेल, a certified trainer from Teach and Seek, and as well as she is an NLP practitioner, uh, a certified NLP practitioner, a professional वाला जो काम हो रहा होता है वो ये कर रही होती है, वो प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कर रही होती हैं. एंड शी इज विद अस now in the fifth session of this training series green wisdom, and I am hopeful कि आप सब लोग जो हैं इस ग्रीन विजडम जो ट्रेनिंग ट्रैक चल रहा है इससे काफी सारा आप लोगों ने लर्निंग की भी होगी और अपनी क्लासरूम्स के अंदर भी लेकर जा रहे होंगे. सो अपने आइडियाज भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग अब तक क्या क्या लेकर जा चुके हैं क्लासरूम्स के अंदर. एंड आज चलते हैं हम मारूफ की तरफ एंड देखते हैं ये हमारे लिए आज क्या लेकर आई है. और देन जैसे कि हर सेशन के अंदर होता है कि आप लोग हम पहले मारूफ से जो है वो फिर हम साथ में इंटरैक्टिव क्वेश्चंस भी कर सकेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है. एंड हमारे पास एक क्विज सेशन भी होगा, उसको करना मत भूलिएगा. सो दैट विल सर्व एज एन एग्जिट टिकट फॉर टुडेज सेशन एज वेल. और मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, बट दोज अनाउंसमेंट्स विल बी एट द एंड ऑफ द सेशन. सो ओवर टू यू मारूक. अस्सलाम वालेकुम मारूक. वालेकुम अस्सलाम फरा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड मारूक. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम. So, यस. as you have already given my introduction, so without wasting more time, I'll move on with the presentation. So, as Farah has already told about a little bit about myself, I have been trained by Farah as a teacher trainer. I am her product. So, this is a little bit profile of mine, which has increased with their assistance and always pushing me to do something. So I'm into 3 ventures right now. As she has told me, as a mathematician, I am running Math Arcade. It's been since 2020. Admount, it's a teacher training organization, soon to be registered. And then a Healing Divine, that is for my mindset coaching. My niche is teenagers. As an educationist, that is my niche. So today we will be relating maths with ecosystem or with the greenery. And many times as mathematicians, as math teachers in our classroom, students do ask us, ke, what is the purpose of teaching this? Iske koi practical application hai? There are several topics, in fact, most of the topics in maths, जो कि directly related हैं आपके natural, जिसको आप बच्चे को क्लासरूम से बाहर ले जाके आराम से सिखा सकते हैं. Because many of the students are basically visual learners. As we know कि हमारे पास visual, auditory, kinesthetic learners होते हैं, मगर हम लोग अक्सर अगर if I ask you to think of an apple, तो आपके माइंड में फौरन से एक पिक्चर आई होगी एप्पल की. ठीक है. So if we are talking to our students in form of visual and we are teaching maths in that form, it will be much easier for them. So let's start with a picture, and I would like you to tell me, what do you observe in this picture? We are not relating it to maths directly right now. Just anything that you see and you want to share, whatever you see in this picture. You can use a chat.
Petals. Okay, Huda. Seeds, yeah. Pattern. Very good. Flower, seeds, flower petals, sunflower, sunflower. Very nice. So if maths is a very raw subject, it's a very dry subject. Teachers को भी कहा जाता है कितने तो dry हैं teachers, ये बस maths ही क्यों पढ़ाते हैं. What if we take something colorful in our classrooms, just take a picture of it and let's relate it to maths now, okay? I don't know how many mathematicians are sitting here, how many of you are actually maths teachers, but even if you're not, can you relate anything with this picture to mathematics? Symmetry. Yes, Farah, that's right, symmetry. What else? Anything else that you can come up with? इस पिक्चर से हम मैथ्स में और क्या सिखा सकते हैं? पैटर्न, ज्योमेट्री. वेरी नाइस. एनीथिंग पर्टिकुलर इन ज्योमेट्री? सीक्वेंस, काउंटिंग, या सर्कल, शेप्स. वेरी गुड. नाइस, वेरी नाइस. तो अगर हम कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम देयर गार्डन, फ्रॉम देयर किचन, फ्रॉम एनीथिंग जो कि नेचुरली अगर हम वो क्लासरूम में लेके जाते हैं और विदाउट इवन इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, हमें पता होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन का, एंड वी कैन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. वी कांट जज आवर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. तो अगर हम ये पिक्चर लेके जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे वो आंसर्स ज़रूर मिलेंगे जो आपके टॉपिक से रेजोनेट करते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट इट एज अ स्टार्टर एक्टिविटी. सो many of you wrote it very correctly. I would just like to add few things here कि हम इसे काउंटर और एंड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं उसको सिखा सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा क्लॉक ही लेके जाएं. इधर जो सीट्स की अरेंजमेंट्स हैं हम उसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आइडेंटिफाई करा के स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. और फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को ड्रॉ करके आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं. Right? Let's move on to one more picture. What is this? And what else can this be? Yeah, use your chat. Pineapple. Pineapple. Yes. What else? There's a cross section here of a pineapple. Yes, So what can you observe there in the clock sort of? Yeah, it is. It is. सिमेट्री अगेन. तो सिमेट्री पढ़ाना कितना आसान हो गया ना. ट्रायंगल पे पढ़ाना और फिर उसको रोटेट करके दिखाना. फ्रैक्शंस, यानी कि इफ यू सी दिस पिक्चर हियर जिसमें फुल पाइनएप्पल है, आप इसमें पैटर्न कितना प्यारा सा बना हुआ है. डिजाइंस ऑफ नेचर. एग्जैक्टली. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन टेक इन द क्लासरूम और हम उससे एक्टिविटीज करा सकते हैं. आपकी जो मैथ्स है वो तो जो सिमेट्री का टॉपिक है वो तो आपको नेचर में इतनी सारी जगहों पर रिफ्लेक्ट होता है. राइट? व्हाट अबाउट दीज रोज पेटल्स? आजकल सर्दियां हैं, बहुत अच्छे रोजेस आए हुए. सो यू सी these petals are basically making a pattern. And what is the point behind it? If you relate, like हम blended learning कराते हैं classrooms में, क्रॉस करिकुलर हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैथ्स को चूंकि एक ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है तो कहते हैं इसमें और क्या हो सकता है. तो आप देखिए इधर सनलाइट और जो आपका एक्सपोजर है सनलाइट को लेकर, जो पेटल्स आपके ओपन हो रहे हैं, ठीक है, हाउ मच एफिशिएंटली नेचर हैज यूज दैट स्पेस कि जब वो ओपन होंगे तो उनमें प्रॉपर लाइट जाएगी एंड दे कैन ब्लूम. राइट? सो वी कैन रिलेट दिस टॉपिक of maths, the direction, the clockwise, and the other one with science. We can do this at any level. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत लोअर क्लासेस की बात कर रहे हैं. हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हैं बच्चों को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों से कि ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हम क्लास में लेके जाएंगे. बट इफ़ यू टेक देम इट विल डू वंडर्स. बिकॉज स्टूडेंट्स की जो एज होती है या किसी भी बच्चे की जो एज होती है 7 years तक इम्प्रिंट एज है. तो अगर इम्प्रिंट एज तक हमने उसको सारी चीज़ें सिखा दी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और उसके बाद टिल 14 years ऑफ एज अगर हम उसको उसका प्रैक्टिकल करने देंगे, their life will be much more easier. They will enjoy this subject. Okay? So, this is a little bit information for you. Like mathematics and the environment, they are directly related.
as we have seen, and everything in nature is made up of mathematics. Ratios उठा लें, proportions उठा लें, pick anything and you can apply a mathematical topic, more than one topics there. Okay, so अब चलते हैं किसी एक टॉपिक की तरफ, which is fractals in trees and plants. क्या लग रहा है इस पिक्चर को देखकर? It's a mystical type of a picture, but what else you can observe here? You can write in the chat. कुछ इसको देख के कुछ जरूरी मैथ्स की थॉट्स आए, बैलेंस, ब्रेन, ब्रांचेस, वाओ, व्हाट एल्स? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नाइस, वेरी नाइस, गुड. So basically, what are fractals? They are basically objects or patterns that exhibit self-similarity at different scales. यानी कि अगर मैं किसी एक पिक्चर को बहुत जूम करूं, if I'm zooming it, तो मुझे उसमें वो एक पिक्चर पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड आई कैन पिक कि ये एक पैटर्न बन रहा है और ये इसी तरीके से रिपीट होगा. इट स्टार्ट फ्रॉम अ ट्रंक, फिर ये ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, ये फर्दर और डिवाइड हुआ, एंड इट्स अ पैटर्न हियर. एंड इफ यू जस्ट जूम इट, यू विल फाइंड इट आउट. आप ग्रास लें, ग्रास को आप पिक करें और आप उसको जूम करें, आप उसके जब पेटल्स देखेंगे, वैसे तो दिखने में ग्रास उस पर चले, इट्स जस्ट लाइक वेलवेट, मगर आप उसके पेटल्स को देखें, वहां से भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं. राइट, सो दीज आर दोज टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स को हम लोग सिर्फ फॉर्मूले के बजाय हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ करके उसमें दिखा सकते हैं. ठीक, सो हमने बहुत पढ़ा है इसी शेप के बारे में, और हमने ये भी देखा है हनी भी. तो एनी आइडिया कि अभी क्या होने जा रहा है? व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू? ओके, हेक्सागन, पेंटागन. ओके, hexagon, again we are relating geometry in this topic here. ठीक है, yes, And different shapes, yeah, different shapes. Okay, let's see. Basically मैथमेटिक्स में आपके पास जो शेप हेक्सागन है, कलर्स, यस, वेरी गुड. अल्लाह ताला ने क्यों बी हाइव्स, ये जो आपका जो पूरा बनता है, ये हेक्सागन की शेप में क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम उनको भी देखेंगे. पहले हम देखते थे कि इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आप पढ़ा सकते हैं. आप पैकिंग, ऑप्टिमल मैप पैकिंग, यानी कि द बेस्ट यूज ऑफ द स्पेस कैन बी यूज्ड बाय हेक्सागन शेप. आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये देखा भी होगा कि वहां पर हेक्सागन टेबल्स रखी जाती हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इज कि वहां पे मैक्सिमम आप अपने पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं. ठीक है, आप इसे हीट कंजर्वेशन सिखा सकते हैं. आप स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये इतना स्ट्रांग होता है कि टूटता नहीं है, इफ यू हैव एवर सीन इट. और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी यूनिफॉर्म होती है. इसमें जो हनी का जो स्टोरेज है वो बड़ा यूनिफॉर्म होता है, ऑप्टिमल होता है, मैक्सिमम होता है. ऐसा होता क्यों है? आपको यहाँ पे पिक्चर एक नजर आ रही होगी. हम हेक्सागन को कंपेयर कर सकते हैं ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और सर्कल्स के साथ. होता ये कि अगर आपके पास जो बी हाइव है, अगर वो स्क्वायर शेप का होगा, तो आप ये कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये स्ट्रांग नहीं हो सकता. हेक्सागन वो शेप है जो कि हर कॉर्नर से कनेक्ट होकर आपको एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर देती है. तो दैट इज वाई हेक्सागन को कहा जाता है कि इट हैज द ऑप्टिमल स्पेस, एंड दैट इज वाई हनी बीज मेक इट and they store maximum honey there, right? So this is a very very good topic which you can relate. जब आप शेप्स पढ़ा रहे हैं तो आप इससे हेक्सागन पढ़ा सकते हैं. आप रेगुलर इरेगुलर हेक्सागन इससे पढ़ा सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर. इवन इफ इट इज इरेगुलर, अगेन इसका जो स्पेस यूजेज है वो बहुत कमाल का है. ठीक है, नाउ डेटा एनालिसिस. व्हाट इज एक्चुअली डेटा एनालिसिस? इसको हम पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में. हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं. हम लोग बच्चों को जब फ्रीक्वेंसी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं
तो हम कहते हैं कि लेट्स डू इट प्रैक्टिकल। आप उसमें ये बच्चों को बोल सकते हैं कि किसी रोड पे से कलर्स ऑफ कार्स कितने की तरीके की गुजर रही हैं, आप रेड ब्लू उनको वाइट कलर्स दे दें, तो इससे बच्चा डेटा कलेक्ट करना सीखता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे चीज़ें मौजूद है जिससे हम बच्चों को डाटा एनालिसिस सिखा सकते हैं। हम उससे टाइम सीरीज एनालिसिस सिखा सकते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस। व्हाट इज कोरिलेशन? बेसिकली इफ यू आर टीचिंग टिल ग्रेड 8, दिस इज अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम ग्रोथ बच्चे को दिखा सकते हैं। हम किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई, हम उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि मैथ्स इज एवरीवेयर। आप इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको डे जो आपका एवरीडे मैथमेटिक्स होता है, परसेंटेजेस होते हैं, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इस वाले टॉपिक में इंक्लूडेड हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, अगेन हम जब बच्चों को मीन मीडियन मोड पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उसको बता देते हैं कि एवरेज निकालना है, ये नंबर्स हैं, इनको ऐड करके डिवाइड कर लो। मगर उससे आप पॉपुलेशन डायनेमिक्स उसको सिखा सकते हैं। सेंसस, इट्स अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे एवरेजेस निकाली जा रही हैं। मोड कहाँ यूज होता है लाइफ में? अगर मुझे किसी शॉप का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट चाहिए है, तो मैं मोड का एवरेज यूज करूंगी वहां पे। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने से पहले अगर आप बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें, तो they will be in a more better position to understand the topic that you are going to introduce with a mathematical formula. So here we have some landscapes. This is again a model of environmental factor कि अगर आपके पास जैसे जो रेन फॉरेस्ट है, जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं उसको हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वेदर कंडीशंस, देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज टू पिक्चर्स। ये दो पिक्चर्स हैं, एंड इफ यू सी फ्रॉम दीज टू पिक्चर्स वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रैक्टल नेचर ऑफ ट्री एंड प्लांट। हम इससे एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी लर्न कर सकते हैं। एंड वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर। हम लोग कहते हैं ना डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये अगर आप बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं किसी चीज का, बच्चों को अगर सिखाना चाह रहे हैं हाउ यू आर कनेक्टिंग, आप इसे रेट रेशियो प्रोपोर्शन बच्चों को सिखा सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज सिखा सकते हैं कि अगर 1 ईयर में हमारे पास इतने फॉरेस्ट कट डाउन हो रहे हैं, उसके ट्रीज कम हो रहे हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डीके। हम उससे बच्चों को ये टॉपिक सिखा सकते हैं। जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ पिक्चर ऑफ नेचर, बच्चा वही कनेक्ट हो जाएगा टॉपिक से। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू, मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही। नाउ दिस टॉपिक इज, ये वो टॉपिक है जो कि हम अपने क्लासरूम्स में आराम से लेके जा सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ गार्डनिंग। एंड कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। आपने देखा होगा, हम बच्चों से पीस मंगवाते हैं, उसको कॉटन के ऊपर डलवाते हैं और उसको हम थोड़ा सा वाटर करते हैं until and unless the pop up, और उसमें से जो है ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सो नॉट ओनली दिस, देयर इज अ टॉपिक जिसमें आप बच्चे को एरिया वॉल्यूम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, अगर हम सिर्फ बच्चे को गार्डन में ले जाएं, हम फील्ड ट्रिप से बच्चों को लेके जाते हैं, इफ यू कैन कैच अप अ प्लेस जहाँ पे गार्डन है या अगर आपके स्कूल में मौजूद है, तो व्हाट विल हैपन, आप बच्चे को वहां पे सिखा सकते हैं कि वो गार्डनिंग कैसे करें, वो कैसे एक छोटे से गार्डन को, उसकी जो स्पेस है उसको मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं, वो उससे लेआउट्स बना सकते हैं, कैसे वो उस स्पेस को मैक्स। आजकल तो ये कितना कॉमन हो गया फरा कि हम लोग जो है मिनिमलिस्ट चीजों की तरफ जा रहे हैं लोग, और वो कम से कम जगह पे मैक्सिमम जो है स्पेस को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज एरिया वॉल्यूम, वी कैन टीच आवर किड्स, बिल्कुल बेसिक with this one. You can teach area parameter, you can teach volume and surface area, sequencing and patterns, हर plant का एक pattern होता है, flow rate and distribution, again as one of you said, ratio and proportions. So gardening can be directly related to our mathematics. अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को एरिया पैरामीटर, इफ यू डोंट हैव गार्डन, आपके पास क्लासरूम मौजूद है, ठीक है, आप बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि
how much carpet needs to be bought, कि ये है जो आपका क्लासरूम है, ये इसको हम कारपेट कर सके, तो बच्चा क्या निकालेगा, डायमेंशंस निकालेगा रूम की। जब वो डायमेंशंस निकालेगा तो आप उससे एरिया सिखा सकते हैं, उसको पेरीमीटर सिखा सकते हैं। देन आप ये कह सकते हैं कि अब तुम इसका एक लेआउट बनाओ, तो आप उसको उससे स्केल्स और मैप सिखा सकते हैं, राइट। तो इफ यू जस्ट टेक फ्यू इंच टेप्स इन द क्लासरूम एंड यू आस्क कि आप ये जो टेबल्स हैं इसमें मैक्सिमम फर्नीचर कितना आ सकता है रूम में, सो this can help you to introduce the topic and the interest of the students will be there। बहुत सारे बच्चों को आप ये एक टास्क दे सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट आप उनको दे सकते हैं कि दे कैन गो बैक टू देयर होम्स और वो अपने बेडरूम का या अपने किसी भी फेवरेट रूम का एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट कर कर आए, एंड यू कैन अवॉर्ड मार्क्स ऑन दैट। project doesn't have to be fancy, it has to be what the child has done। like अभी फरहान ने कहा, am I audible, Farah? Yes, there was a glitch, and now you are audible. So still voice is not coming. Are you there, Marwa? Yes, Farah, better. am I audible? Yeah. Yes, you are audible now. Okay. Yeah, जी got it. ओके, सो आई वाज सेइंग कि हम लोग ज़रूरी नहीं कि बच्चों को फैंसी प्रोजेक्ट्स दें, हम उनको बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स देकर लेआउट्स बनवा के बिल्कुल। बाद में अगर कोई बच्चा, बिल्कुल हम उनको देखें, आज ही अगर हम बच्चों को उनकी फील्ड्स बताना स्टार्ट करें, बहुत दफ़ा बच्चों को ओ लेवल्स या मैट्रिक तक पता नहीं होता कि उनके आगे अपना करियर परस्यू क्या करना है। आर्किटेक्चर आप इससे सिखा सकते हैं कि व्हाट डज एन आर्किटेक्चर डू, वो स्केल्स और मैप्स और उन सारी चीज़ों को लेके ही काम कर रहे होते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो न्यू फील्ड्स अभी जो इमर्ज हो रही है आफ्टर द बूम ऑफ एआई, हम क्या क्या अपने बच्चों को अपग्रेड करके चीज़ें दिखा सकते हैं ताकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो। दे विल बी कम्पीटिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ एआई। उनका कंपटीशन अब सिर्फ कराची से नहीं रह गया, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं रह गया, उनका कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एवरीथिंग इज वर्चुअल नाउ, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू टीच देम, टू हमें उनको ज़्यादा स्किल बेस्ड बनाना है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे गार्डनिंग की, तो आप उससे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एस्टिमेशन, दिस इज अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल, ठीक है। आप उससे इसको ये सिखाते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड एवरेजेस, डेटा एनालिसिस, स्केलिंग एंड प्रोपोर्शंस, कितना पानी डालना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर बच्चे को आप इस काम पे लगा दें, व्हेन दे प्ले विद सैंड, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगेन वी आर टीचिंग मैथ्स बट वी आर नॉट टेलिंग देम व्हाट वी आर टीचिंग देम, वो अनकॉन्शियस वे में इसको पूरा लर्न कर रहे हैं। वेदर, लाइक कराची का वेदर कहते हैं बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और ऐसे ही हो जाता है कुछ भी। वी ऑल हैव स्मार्टफोन्स, हम स्टूडेंट्स को एक्टिविटी दे सकते हैं कि दे कैन गेट 1 वीक वेदर फोरकास्ट फ्रॉम देयर, और फिर वो उसको गेज करें व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। तो हमारे पास एक तो जो हमारे पास एक टेम्परेचर आ रहा होता है, ठीक है, हम उससे बच्चे को डेटा कलेक्शन सिखा सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप उससे पढ़ा सकते हैं बच्चे को। आप एक ट्रेंड जरूर जनरेट कर सकते हैं। हैव एनी वन ऑफ यू एवर ट्राइड रिलेटिंग दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट विद मैथ्स? आई वुड लाइक टू नो any one of you who has used this topic climate and has related it to maths or any other thing. Okay, so again if you are using it, you are teaching your student so many topics other than weather। यानी कि एक साइंस का टीचर भी यूज कर सकता है ये टॉपिक, एक मैथ्स का टीचर उसको वेदर एवरेजेस सिखाने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, और वो कितने अरसे बाद आपका वेदर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देयर सो मच, जो आपका टेम्परेचर ट्रेंड है वो 10 साल पहले नहीं था। ये सरम। Assalamualaikum, everyone. Sorry to have joined late. The thing is, being a teacher of Pakistan studies and social studies, catering this subject, it is always very important for us to create a cross-curricular links.
तो Yeah. उस सिलसिले में सी व्हेन इट कम टू द वेदर, व्हेन इट कम टू द वेदर चार्ट, व्हेन इट कम टू कंपैरिजन, तो उन तमाम चीजों में मैथ्स का यूजेज होता है। जबकि नॉट ओनली वेदर, इवन अगर आप ये देखें कि अदर सब्जेक्ट लाइक डायरेक्शन, हम्म सोशल स्टडीज और ज्योग्राफी में डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होते हैं, तो 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। Exactly. So altitude, longitude, latitude, all these is maths. The thing is कि this is very important, और क्रॉस करिकुलर लिंक क्रिएट करने से हमेशा आसानी हो जाती है। तो I have being a teacher's trainer myself, I have always asked my teachers to create all these type of curricular link that support students learning. बच्चा जल्दी लर्न करता है। Exactly. Exactly. Agree with you. Completely agree. Even क्रॉस करिकुलर लिंक्स के अलावा जो बच्चे की इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो होती हैं वो जो हम कराते हैं, उससे बच्चा इस चीज़ को जब खुद करता है तो याद भी रखता है। तो इफ़ यू आर गिविंग असाइनमेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट्स टू बी डन बाय द पेरेंट्स, ऐसी चीज़ें दें जो कि स्टूडेंट्स खुद करें और वो कुछ लर्न भी करें। इससे आपके टीचर्स को भी आइडिया होगा। आपके पास अगर क्या कहते हैं एक्टिव लर्निंग की अगर क्लासरूम्स हैं आपके पास, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन द क्लासरूम। एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट रोट, only use Karachi temperature pattern to link it with pattern and sequence. Yeah, we can do that. हम इसको कितना भी chunk down कर सकते हैं, हम इसको कितना भी chunk up कर सकते हैं, it all depends. Okay. Golden ratio. Have you ever heard about it? Golden ratio. Anyone? ये क्या होता है? No, I have not. So sorry. Need your guidance here. गोल्डन रेशियो मैथ्स के अलावा ह्यूमन फेस पे भी होता है। और अगर हम इसको ब्यूटी से रिलेट करें तो आपने कभी सुना होगा कि एक कुछ आपको लगता है कि फला बंदा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है वो द रेशियो यूज किया जाता है। इट्स अ रेशियो ऑफ समथिंग आई थिंक 16:8:1, जो कि आपके फिजिकल आपका जो फेस है उसके ऊपर ये बनता है। ठीक है, अगर हम इसको मैथ से रिलेट करें, ओके, तो ये जो आपके पास सी शेल्स हैं, these seashells are basically made on golden ratio. Yes, almost 16:3, I guess. Yes, that is what we are doing here. ठीक है, तो जो आपके पास स्पाइरल ग्रोथ पैटर्न्स हैं, जो ये शेल बनता है, ये ऐसे ही नहीं बन गया। नेचर यूजेस गोल्डन रेशियो। हमारे लाइफ में नेचर ने कितनी चीज़ों को हमें हेल्प आउट करा है, उसको कोई एक चीज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स को देख के एरोप्लेन्स बने, राइट? या सो बाय यूजिंग दिस पैटर्न इट वाज पिक्ड फ्रॉम देयर एंड वाज यूज फॉर ब्यूटी स्टैंडर्ड, उसको सेट करने के लिए। तो अगर अब आपका स्टूडेंट पूछे ना कि कहाँ यूज होती है मैथ्स, तो कहाँ नहीं यूज होती है, ब्रिंग वन टॉपिक, इट्स एवरीवेयर। तो अब ये आपके और आपके स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी के ऊपर भी है। देखिए, अगर बच्चे को हम बाउंड्री नहीं देंगे, हम उसको खुला छोड़ देंगे कि बेटा यानी कि वॉट एवर यू वांट, अगर थोड़ी सी उसको बाउंड्री में आप चीज़ें रिसर्च के लिए दे दें, तो आप फिर देखिए बच्चे अपने दिमाग से कितनी अच्छी रिसर्च करके लेकर आते हैं। हर किसी का रिसर्च करने का पैटर्न डिफरेंट होता है। अब आपसे अगर गोल्डन रेशियो बोलेंगे तो हर बच्चा डिफरेंट चीज़ें लेकर आएगा। हमारे यहाँ बच्चे सी साइड्स पे जाते हैं, हम उनसे कहीं शेल्स कलेक्ट करके ले आए, बताइए नहीं आप क्या करने वाले हैं, एंड देन शो दीज पिक्चर्स टू देम, ask them to measure। आप उससे रेशियोज बहुत अच्छा उसको सिखा सकेंगे। एंड देन वी हैव द नॉटुलस शेल। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। ये शेल्स बड़ी कॉमनली आपने देखी होंगी, हमें मिल जाती हैं। इससे आप बच्चे को डायरेक्शन क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज सिखा सकते हैं। आप इसके जो चैम्बर्स बनते हैं, आप जरा इसको कभी पलट के देखिएगा कि अल्लाह ताला ने कैसी अच्छी चीज़ें बनाई हैं कि दे आर कंप्लीटली बैलेंस्ड एंड दे ऑल्सो फॉलो द गोल्डन रेशियो, राइट? सो अच्छा लगा अगर आपको ये एक चीज़ नहीं लगी। मैंने गोल्डन रेशियो के सिर्फ मैथमेटिक्स से टॉपिक्स पिक करे थे, अदरवाइज मैं जब इसको सर्च करने बैठी थी, इट्स अ लॉट। आई वॉज अमेज्ड, बट आई डू रिमेंबर गोल्डन रेशियो फॉर द ब्यूटी स्टैंडर्ड।
तो मैंने कहा हम उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द बेनिफिट्स। ये सब कुछ पढ़ाने का फायदा क्या होगा, वो तो हमने सुपरफिशियली देख लिया। व्हाट विल बी द बेनिफिट्स व्हेन यू टेक स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग मैथ्स? तो वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को फौरन पिक करता है। वो ये पूछना छोड़ देगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो मार्क्स के लिए पढ़ना छोड़ देगा। उसको इतना इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट में। लाइक हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन, हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं। द रीजन इज बच्चा क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वो इंटरप्रेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वोकैबुलरी बिल्ड नहीं हुई थी। वोकैबुलरी इसलिए बिल्ड नहीं हुई थी कि हमने उसको रियल वर्ल्ड दिखाई ही नहीं कि बेटा ये है, नाउ यू कैन डू इट। तो द फर्स्ट बेनिफिट दैट यू विल बी गेटिंग व्हेन यू आर टीचिंग एंड रिलेटिंग मैथ्स विथ नेचर इज यू विल बी गेटिंग, बच्चे को रेलेवेंस फील होगी। जब बच्चा रिलेट कर सकता है चीज़ों से तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा। अगर मैं इस वक्त आपसे कोई ऐसी बात कर दूं जिससे आप रिलेट ही नहीं कर सकते तो आप ऑफ हो जाएंगे एंड यू मे लीव द मीटिंग। ओके, द सेकंड बेनिफिट इज स्टूडेंट्स विल फील मोटिवेटेड। जब भी आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं हम अवॉइड करते हैं कि बहुत शोर होगा, क्लास मैनेज नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वो बच्चे की लर्निंग एज है। आप रोज ना लेके जाएं, लेकिन इसको हैंडल करना आसान है, why not take it? So when you are taking student out of the class, you are making them engaged and motivated, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। वो आपसे और चीजें पूछेंगे, वो आपसे हो सकता है कुछ ऐसे सवाल पूछ लें जिनके बारे में आपने भी कभी ना सोचा हो। We always learn from our students. Then they also learn discipline. जब वो टीम में ओके, मारो की आवाज थोड़ी सी कट गई है मारो। यस, उनको तीन बिल्डिंग गाने लगती है एंड हियर अगेन कम्स द मैथ्स पार्ट एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी। यहाँ पे कुछ मैथ्स की बात भी आने लगती है और ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है, एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने लगते हैं। मारो का यू स्टिल विद अस और थोड़ी सी देर में वापस आ रही है। Yeah. And No there are doubt, it's a very nice thing that she has just highlighted. yes, उनका इंटरनेट मारूफ अभी जो मैं बता रही थी कि नो डाउट इट्स लाइक स्किल सेट भी हम बच्चे का डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो जो ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, तो मिस मारूफ is really referring us, taking us there, that it is not only academics. In true sense, she is giving us this idea how to create, give education to the children. एग्जैक्टली, बेसिकली यही वाला पर्पस है कि नेचर जो है ना वो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर रखी हुई है। इट्स नॉट लाइक के आइसोलेशन के अंदर है। हमने उसको कंपार्टमेंट्स के अंदर कर करके जो है ना वो एक रिफ्ट क्रिएट कर दिए कि वो बच्चों को इतने ड्राई लगते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे अप्लाई कहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन जब हम Exactly. उसको कनेक्ट करना शुरू करते हैं देन द डोर्स आर ओपन। वो फिर जिस तरह से मारूफ भी शेयर कर रही है अपनी एग्जाम्पल जी एंड अच्छा, that's मैं amazing. मैं इसमें थोड़ा Yes, सा okay. ऐड करूं Yeah, sure. जब तक माहिरों आती हैं। I'm back. मुझे लगता है कि नेचर में यही इस चीज को हम अगर लेके चलते हैं, जो मैंने फील किया है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स स्पेशली ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स आती है, वो वर्ड प्रॉब्लम में आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स को वो मतलब स्टेटमेंट ही बना नहीं सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट होगा, एंड दैट इज द मेन रीजन कि वो फिर वो यानी लैंग्वेज का भी इनको बैरियर आ जाता है। स्टेटमेंट वो जब समझेंगे, जब नेचर में वो खुद इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो उनको वर्ड प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वो ग्रास्प कर लेंगे कि किस तरह से स्टेटमेंट क्रिएट करना है उन्हें। बिल्कुल। So that's very nice, Okay. Maru, that you highlighted this thing. थैंक यू सकीना। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं आपको एक टिप भी दे दूं। आप बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व ना करवाएं, उससे क्या सिर्फ क्वेश्चन इंटरप्रेट करके उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले। वंस दे आर प्रो विद इट, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहता। फिर आप क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की एक्सरसाइजेस कराएं। इंटरनेट पे आप गूगल करें सिर्फ क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ग्रेड 4 मैथ्स, आपको वो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे और उसके साथ वो आपको आंसर भी जनरेट करके देंगे।
तो यू कैन डू इट एज एन एक्टिविटी, बिकॉज जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते हैं एंड हम बच्चे को अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते हैं तो ऑफ कोर्स दे हैव टू डील विद इट। तो लेट्स ट्रेन देम फ्रॉम द बेसिक्स। प्राइमरी में अगर ये चीज कवर हो जाए तो इट विल नॉट बी अ बैरियर फॉर देम इन फ्यूचर। सो द थर्ड बेनिफिट दैट आई थॉट वाज हैंड्स ऑन लर्निंग। अब बच्चे अगर मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, हम प्ले डो देते हैं बच्चों को प्ले ग्रुप्स में, और जब वो थोड़े और बड़े हो जाएं अगर हम उनको सैंड में जो है खेलने के लिए दें, तो व्हाट हैपेंस इज कि वो उससे बहुत सारी चीज़ें मैथ्स की सीख रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चा विजुअल और अपने हाथ से कुछ करता है कैनेस्थेटिक, तो अगेन दे ऑलवेज रिमेंबर इट। तो आउटडोर एक्टिविटीज जो मैथ की होती हैं, दे अलाउ स्टूडेंट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, दे मेक गुड ऑब्जर्वेशंस। हर बच्चे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है, कुछ की सेम भी होगी। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कलेक्ट डेटा। अगेन हम उनको स्टैटिस्टिक्स अनकॉन्शियसली सिखा रहे हैं, राइट? देन वी हैव, यहाँ पे छोटा सा एक चीज ऐड कर दूं मारो। यस 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 फरा, बेसिकली काइनेस्थेटिक के अंदर ना, यहाँ पे बच्चे जब हाथ अपना डालते हैं ना, तो उनको मैथ्स की ये वाली फीलिंग भी आने लगती है कि कौन सी चीज कितनी डैम्प है, सेंसरी एग्जैक्टली। जो मेजर्स हैं उनके, और उसका फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें कितना पानी इसके अंदर ऐड करना होगा, या कितना जो भी हम इसको सॉल्युबल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो कब एग्जैक्टली। जाके फर्दर लिक्विड फॉर्म के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए हमें कितना रेशियो इंक्लूड करना है ताकि वो गोल्डन रेशियो के अंदर कन्वर्ट हो जाए। Wonderful, wonderful, Farah. That was a golden nugget that you shared. Very nice. अब वही बात है कि द मोर यू डिस्कस और जितना बच्चे को प्रैक्टिकल डील करेंगे, इट विल बी आपको नहीं पता बच्चे ऐसी कुछ फाइंडिंग्स लेकर आए जो आपने कभी ना देखी भी हो। आजकल का बच्चा माशाल्लाह फुली अवेयर, वेरी शार्प, एंड वी डू लर्न फ्रॉम देम। द नेक्स्ट थिंग इज वी कैन यूज द मेजरमेंट्स। हाइट ऑफ अ ट्री हो गया, आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके गए, आपने उससे एरिया निकलवा लिया फील्ड का, सिर्फ टाइल्स का निकलवा लिया, मेक इट इजी फॉर देम। सजा ना बना दे उनको बाहर ले जाके कि ये करना है। तो जस्ट रिलैक्स, वो थोड़ा सीखें भी। कैंपिंग पे आप ले जा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें, आप उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से, नेचुरल पैटर्न से बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। लाइक इधर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, कोई फील्ड ट्रिप चल रही है और देयर लॉट मेनी थिंग्स दैट कैन स्टूडेंट्स कैन डू हियर। Then we have the critical thinking and problem solving. मैथ्स क्यों जरूरी है, मैथ्स क्यों पढ़नी चाहिए, मैथ्स ही क्यों हमें जगह पर होती है, डॉक्टर भी बन जाओ तो भी मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो द रीजन इज के इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट मेक्स यू अ गुड डिसीजन मेकर, बिकॉज मैथ्स आपके ब्रेन सेल्स में वो चीज़ें डालता है जो कोई लिंग्विस्टिक वाला सब्जेक्ट या कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं डालेगा। जब आप बच्चे को ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स देते हैं और आप उसको छोड़ देते हैं सोचने के लिए, जब आप उसको जज नहीं कर रहे, ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स कि एवरी आंसर इज अ राइट आंसर, तो बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा। जब वो सोचेगा तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, अल्टीमेटली वो उस ऑब्जेक्टिव तक जरूर पहुंचेगा जो आपको उस लेसन में अचीव करना है। अगेन, जब बच्चा सिर्फ सोच रहा होता है, आपने कोई क्वेश्चन या कोई पिक्चर दिखाई, वॉट एवर योर स्टार्टर एक्टिविटी इज, थोड़ा वेट करें और फिर देखें कि बच्चों के रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज वो होंगे जो आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किए हुए थे, और मे भी कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आपको मिले जो आपने नहीं सोचे हुए थे, आपको कुछ सीखने का मौका मिले, एंड देन यू कैन टेक दैट लर्निंग टू अदर क्लासेस एज वेल। सो व्हेन अ स्टूडेंट थिंक एंड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो वो एक अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, दे कैन फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, और उससे क्या होगा, जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चे में डेवलप होती हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूरी की पूरी इसमें आ जाती है, ठीक है? तो इफ़ यू आर हेल्पिंग योर स्टूडेंट्स, आप उनको असिस्ट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उनको अनकॉन्शियसली वो अंदर अपने बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट उठा ले, मैथ्स उधर होती है। रीजन, दे नीड टू सी कि द पर्सन कमिंग इन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज कितना क्रिटिकल थिंकर है, कितनी अच्छी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिकॉज ये लाइफ के हर हिस्से में आपको काम आएगी। आपको डे टू डे डिसीजंस बनाने में हेल्प करेगी। बच्चों को डिसीजंस लेने दें, मगर उनको सीखने के लिए आपने पहले सोच देनी होगी। वो सोच आप क्लासरूम से देना स्टार्ट करें ताकि वो एक अच्छे इंडिविजुअल भी बने।
then when you are blending maths and environment with them, तो what will happen, उनके अंदर सेंस आएगी कि एनवायरनमेंट को कैसे उनको लेके चलना है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, एंड व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी द टेम्परेचर चेंजेस एंड अदर स्टफ। एम्पैथी बच्चे में आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे में डेवलप होगी। ये वो स्किल्स हैं अदर देन एकेडमिक्स जो कि इस वक्त की नीड है बच्चों को सिखाने की। बीइंग अ माइंडसेट कोच फॉर टीनेजर्स, देयर इज अ लॉट दैट दे आर डीलिंग विद। तो हम उनको सिखाएगा कौन? हम ही सिखाएंगे उनको। ऐसी प्रैक्टिसेस हमने सिखानी है जिससे वो डिसिप्लिन हो, उनकी प्रैक्टिसेस लाइफ को लेके अच्छी हो, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, वो अपनी हर चीज़ को ओन करें। वो ओन उस वक्त करेंगे जब वो डिसीजंस लेना सीखेंगे, और वो ये सारी चीज़ें मैथ्स से आती हैं। somehow or the other they develop it. And last but not the least, I am open to questions and answers now. So anyone, if anyone, or या फिर आपका कोई suggestion हो, कुछ आपने share करना हो, I would love to listen. That's amazing, Maruk. And yes, we are most, you are all very welcome to question if you have any questions or if you want to discuss anything. And I'm also sharing the link for the quiz. So here's the link. So you can attempt that as well. किसी का कोई सवाल, किसी का कोई आप लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें से कुछ चीजें प्रैक्टिस की भी हैं ऑलरेडी? You can share your experiences, you can share anything, because आप जो कुछ अभी शेयर करेंगे वो सबके लिए टेक अवे होगा। Exactly. I think they are busy in the quiz. Okay. Yes. So yes, जैसे मारूफ ने इसमें बहुत अच्छे से explain भी किया है, and we have discussed lots of things. And here Anand is saying like your session just need a little help. Please, if you can suggest some activity to link ratio with gardening, as you mentioned in your slide. हाँ जी, मारूफ इसका जवाब दे रही है। So can you suggest ये हम some दोनों दे रहे हैं। activity to link ratio with gardening? ये तो फरहान ने ही खुद बता दिया था कि adding water in soil to make it damp or to make it liquid to make it, यानी कि पडल बच्चा बना रहे कुछ, ठीक है, Yes. तो you can teach ratio from there. आप उससे Yes. वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं बच्चे से। कोई आप जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं आप उसका वॉल्यूम पहले कैलकुलेट कर लें। फ्रस्टम की आप उससे बेसिकली कप को अगर उल्टा कर दे तो दैट्स अ फ्रस्टम। आप उससे रेशियोज बच्चों को सिखा सकते हैं। अनम, आई yes. होप। हाँ, अनम, हम गार्डनिंग में इस तरह से भी कर रहे होते हैं कि गार्डनिंग में हमको एक मिक्स बनाना होता है कि व्हाट्स द बेस्ट मिक्स जिससे हमारी अच्छी यील्ड आएगी। तो हम कहते हैं कि हमने मिट्टी लेनी है, कंपोस्ट लेनी है, एंड देन हमने उसका एक रेशियो लेना होता है कि 1 पार्ट जो है वो कंपोस्ट का जाएगा, 2 पार्ट्स आपके उसके जाएंगे 50%, या हाफ जो है वो आपका मट्टी जाएगी, एंड 1 पार्ट जो है वो आपका रेत वाली मट्टी होनी चाहिए, जिससे कि सॉइल अच्छी सी सॉइल मिक्स अच्छा सा बन जाए और आपकी रूट्स जो डेवलप होती है ना वो अच्छे से डेवलप हो। ताकि जितनी अच्छे से रूट्स डेवलप होंगी तो आपके प्लांट को उसी हिसाब से, उसी रेशो से प्लांट को वो सारी ग्रोथ मिल रही होगी। एग्जैक्टली। यू नो फरा, व्हेन आई स्टार्टेड गार्डनिंग आई मेस्ड अप माय प्लांट्स, क्योंकि मुझे रेशो नहीं पता था। आई सर्च्ड कि इसे मिट्टी नहीं डालनी होती, बहुत कुछ और चाहिए होता है। फिर माली तो ये कि इट्स एवरीवेयर। फिर मैंने क्लास में जाके बोला, मैंने कहा बार बार पूछते हो ना मैथ्स इज वेयर, मैंने कहा आई स्पॉइल्ड माय 2 or 3 प्लांट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता था। हाँ, फिर तो ये कि फिर तो मैं डर गई ना कि ये फ्लावर वाले प्लांट्स नहीं चलेंगे। फिर हर वेदर में हर प्लांट नहीं होता, और इवन हर प्लांट की डिफरेंट होती है। मारूफ, नीड हर प्लांट की बिल्कुल। डिफरेंट होती है। लाइक यूजुअली जो अच्छा मिक्स होता है वो सब्जियों के लिए कुछ और होता है अच्छा मिक्स, एंड जो कैक्टस वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए कुछ और होता है।
बिल्कुल Uh, मैं इवन इवन जो पोटैटोज होते हैं ना, उसका मिक्स कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके अंदर हमें ज्यादा रेतीली मिट्टी चाहिए होती है। उसके अंदर अगर हम टू मच ऑफ नाइट्रोजन मिक्स कर देंगे तो वो अच्छा अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। आपके पोटैटोज जो है वो अंदर ही स्पॉइल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ नाइट्रोजन। तो अगेन आपको नाइट्रोजन का रेशियो पता होना चाहिए कि आपने कितना डाला है। हाँ, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने अब तक अच्छा से एलोवेरा लगाया है एलोवेरा मैंने बहुत अच्छा लगा लिया, बट आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग विद द कोरिएंडर एंड द मिंट लीव्स। वो मुझसे नहीं हो पाया बिल्कुल भी, Okay, अच्छा तो वो ठीक है। प्लांट्स मेरे ज़ाया हो गए। हम्म, बट यस, आई डू रियलाइज के मैथ्स को अगर हम देखें, मैथ्स पढ़ाना मुश्किल नहीं है क्योंकि इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट। बिल्कुल, आई एम मास्टर्स इन प्योर मैथ्स, मैंने बहुत ड्राई मैथ्स पढ़ी, आई डू नो। बट वो रिक्वायरमेंट थी, मगर ये कि हर लेवल पे हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी सिखा सकते हैं। और एआई आने के बाद तो फरा हम वीडियोस बना सकते हैं, हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। हमें नहीं भी मिल रही, वी कैन जनरेट ऑन आवर ओन। देयर इज अ लॉट वी कैन डू फॉर आवर स्टूडेंट्स, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। exactly. So I think there are no more questions here. Okay. If you have any questions, then you can ask, or I have announcement for you as well. So I want to share that with your permission, Maruk and everyone. ठीक है। Yeah, sure. Go ahead. आज हमने इको मैथ्स के ऊपर आ गए हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 सेशंस। एक सेशन और रह गया है जो कि इंशाल्लाह फरवरी के अंदर स्केड्यूल्ड है। एंड यहाँ पे मैं कुछ नाम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर सेशन के एंड के ऊपर आप लोगों ने कुछ क्विजेस करने होते हैं और एक क्विज करना होता है, कुछ क्विजेस नहीं, सिर्फ एक क्विज करना होता है। और बेस्ड ऑन दैट वी विल बी हैविंग लाइक शुरू में अनाउंसमेंट हुई थी कि मिनिमम 4 क्विजेस अगर आपने किए हुए होंगे सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन बिजनेस ट्रेनिंग ट्रैक के लिए। अगर सबने मतलब बहुत सारे लोगों ने 6 के 6 किए हुए होंगे तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर अस। लेकिन यस, कुछ हमने डेटा कंपाइल किया है मैथ से रिलेटेड ही एंड उसमें जो है वो ये इन सारे सारे लोगों के नाम हैं। सना सिद्दीकी हैं, मरियम हफीज हैं, मोहम्मद कमरुद्दीन साहब हैं, सैयदा मुश्कबार फातिमा है, मुनीरा मुर्तजा, सुफियान अली, खदीजा, सुजैन सोका, नूरुल बरा। आई होप के मैंने उनकी स्पेलिंग उसको उनको स्पेल सही किया है। डॉक्टर काती तौसीफ हैं, बेलोस्री रॉय हैं, उबैदुर रहमान साहब हैं एंड शादिया इस्माइल, इरम नसीर, सुजैना कैलोसोका एंड हिना हाशमी। They have attempted only one quiz out of 5, नहीं out of 4 actually। 5 का डेटा तो आज कंपाइल होगा। एंड सलमा यासिर, फर्रुख रजा, शाहिबा, मरियम सना एंड निगत सुल्ताना, आप सब ने जो है वो 2 क्विजेस को अटेम्प्ट किया है। एंड 3 क्विजेस में सकीना का नाम है, सोफिया राना का नाम है, साइमा शुजात हैं एंड रुखसाना हैं जिन्होंने 3 क्विज अटेम्प्ट किए हैं अब तक। एंड फाइनली द 4 क्विज जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। तो दीज आर द पर्सन, जिसमें सना आयशा शेख हैं, यास्मीन है और मुश्ताक अहमद राहू हैं। सो ये सब तो ग्रीन जोन में आ चुके हैं। बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यस, अगर आप लोग अभी भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्विजेस सो यू कैन वॉच द वीडियोस एज वेल, पुराने वाले सेशंस की। एंड जो अभी एक सेशन रहता है उसको जरूर करिएगा और आज के इसको मिस मत कीजिएगा सेशन के क्विज को। प्लीज वो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा and be the part of this green wisdom and the change, small step towards the sustainability and taking it to our classrooms, basically. Yes. Any further questions then? Yes. Or your solution or any suggestions that you want to have. और अगर आप लोग ये सेशंस अपने स्कूल में कराना चाहते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विद योर schools and you can invite us as well. We will be very happy to come to your schools as well. Yeah. It was nice being with you guys. Those who have appreciated
the workshop. That's really good. Thank you so much, because it was much it was for Farah. मैं इतने अरसे बाद आई हूँ और I have done a training. And So बहुत अच्छा लगा मुझे. कुछ फेसेस हैं, कुछ नाम हैं जिनको मैं ऑलरेडी जानती हूँ, और ये कि इट वाज गुड. और अच्छा लगा इरम के कमेंट सुन के, उसका इनपुट भी सुनकर, and Sakina's as well. So we all need we all have room for improvement, and it will be good अगर आप थोड़े suggestions भी दें, ताकि चीज़ों को और हम लोग बेहतर कर सकें. And that's all from my side, Farah. Thank you so much. Thank you for having me here. Good to meet you after a long time. it was wonderful having you, Maro. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है माहे ज़हरा का. Yes, it is your first session, माहे ज़हरा. So don't worry, I will be sharing the links as well on the group as well as on my Facebook group. So you can watch those past 4 sessions and attempt the quiz. Quiz links जो है हर उसके YouTube के description में already मौजूद है, and I will be sharing those quiz links with you as well again in the group. ठीक है? अगर आप ग्रुप में अभी एडेड नहीं हो सकी हैं, so do let me know at my number. You have already my numbers, right? Otherwise, you can contact me as well. Okay. Yeah. ठीक है. So this was our small effort for a better world of sustainability, कि जहाँ पे हमें बहुत सारी डिसकनेक्शन हो रही है with the nature, लेकिन हम अपने घर में स्टिल घर में अपने क्लासरूम्स में अपनी एनवायरनमेंट में छोटा सा अपने हिस्से का पार्ट करके अपने बच्चों के लिए एंड आगे की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हम पार्ट प्ले कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ द लर्निंग गोज ऑन. और ये नेचर कनेक्शन जो है ना, ये सारे एक्चुअली इंटरडिसिप्लिन के अंदर मौजूद है, जैसे कि मारूफ ने भी हाईलाइट किया है, एंड वी आर गेटिंग टू नो अबाउट इट. एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू मारूफ फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल amazing session, and thanks to you all for joining us. And Acha, when is the next session? Okay, next session is in February, in the next like second Saturday, most probably. Okay, and it will be shared by the end, inshallah, as soon as it will be. Okay. So another session will be the last session will be in February, and then inshallah in the March, there will be the certificate ceremony. And so you will be getting those certificates as well. Okay. So again, all the very best, and stay tuned for the next session. And I hope you are all enjoying these sessions. And do share your experiences into your classrooms. Until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Take care. Thank you. Thank you, Maro. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Farah. Take care.